Let us start chapter 14, Sources of Energy, session 5. Already we have studied about renewable resources and non-renewable resources. Today we are going to study about wind energy. How we can use wind energy to generate electricity. Okay, let us see now. Unequal heating of the landmass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes wind to blow. This we have already studied in standard 9, right? When there is an uneven heating of the land, there is a change in pressure, and because of the change in pressure, there is a wind which will arise because of it. Okay, let us see with the help of image. See here, during the daytime the land will get heated faster and it will become low pressure area, whereas on this part the pressure will be high because of less heat, and therefore the air will move from higher pressure to lower pressure. Okay, higher pressure to low pressure, and this is called as sea breeze, as it is coming from the sea. On this side, night. Okay, night. During night the water will get cooled down slowly, therefore the warm air will rise up and creates low pressure. On the other side, the land will get cooled down faster, and therefore there will be more air, which is nothing but a high pressure area or high pressure region. Therefore the wind will blow from high pressure to low pressure, which will give us land breeze, as the breeze is coming from the land. Understood? This we have studied in the last grade, that is a class 9. Okay, so now you understood that uneven heating will cause wind. Okay, now this kinetic energy of wind can be used to do work. This energy was harnessed by windmills in the past to do mechanical work. तो जब भी अनइवन हीटिंग होता है अर्थ पर, तो उसके कारण विंड ब्लो होना स्टार्ट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, एंड जिसके कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है विंड के अंदर. सो विंड का काइनेटिक एनर्जी हम यूज करेंगे, जिससे विंड मिल्स रोटेट करेगा एंड हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा. फॉर एग्जाम्पल, in a water lifting pump, the rotary motion of a windmill is utilized to lift water from well. So rotatory motion of the windmill is utilized. We all know when wind blows, ठीक है, विंड जब ब्लो होता है तब विंड मिल्स के ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये है ब्लेड्स, विंडमिल है, ये पहले के ज़माने का है. तो ये विंड मिल्स के ब्लेड्स रोटेट करेंगे, जिससे ये पाइप आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा पाइप है अंदर के साइड, वो पाइप एकदम अंदर ग्राउंड के अंदर कनेक्ट किया होगा. तो जब ये रोटेट करेगा तो अंदर से पानी आएगा और यहाँ से वो ये टैंक फिलअप करेगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा पाइप, ये रहा है पाइप छोटा सा, ये देखो ये पाइप है, और यहाँ पे सेंटर में ये एक पाइप है. तो ये पाइप ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा अंदर, एंड यहाँ से वो पानी
देगा। ठीक है। Today, wind energy is also used to generate electricity. हम सबको पता है कि हम अभी ये टाइम पर विंड एनर्जी जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते थे। वो जो टाइम था वो पहले का था जब वाटर हम ग्राउंड के अंदर से बाहर निकालते थे विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। Windmill essentially consists of a structure similar to a large electric fan that is erected at some height on a rigid support. You can see this is a very big fan, right? Like ceiling fan which is there at our house. हमारे घर पे जो सीलिंग फैन है वैसा ही टाइप का स्ट्रक्चर ये है। वो रोटेट करता रहेगा जब तक उसको विंड स्ट्राइक करेगा। ओके। फैन को हम सीलिंग पर रखते हैं, सीलिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, बट ये फैन को, ये इलेक्ट्रिक फैन को हम कहाँ पे करेंगे? देयर इज नो सीलिंग टू कनेक्ट इट। तो हम क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजिड सपोर्ट चाहिए। मीन्स ये सपोर्ट, ये जो पोल दिख रहे हो आप सबके यहाँ पे एक पोल है, ये सब पोल्स है, वो उसका सपोर्ट है। ठीक है। तो ये जो पोल्स है वो दो काम करेंगे एक्चुअली। इसमें सब केबल्स होंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जो रोटर है, ब्लेड है, उसको रोटेट करने के लिए, एंड जनरेटर का जो भी केबल्स होगा वो कनेक्टेड होगा नीचे तक, जिससे हम सप्लाई आगे ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है। To generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. तो जो रोटेटरी मोशन है विंडमिल के ब्लेड्स का, वो किसको रोटेट करेगा? जनरेटर के टरबाइन को। तो जब जनरेटर रोटेट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। The output of a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purposes. जो एक विंडमिल है उससे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम अमाउंट का होगा। And therefore, whenever you will see windmills, you will see in bulk. There will be somewhere around 20 to 40 windmills at a single place. Okay? तो एक विंडमिल से हमें सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, एंड इसीलिए हमें बहुत सारे विंडमिल्स एक साथ सेटअप करने पड़ेंगे। ये इमेज में आप देख सकते हो कि when these blades rotate, blades are connected to the generator at this part. Now when blade rotates, it will rotate the generator also. You can see here, generator भी rotate होगा, एंड जो नीचे एक पोल है स्ट्रेट नीचे डाउन अर्थ की तरफ जो जा रहा है वो कनेक्टेड होगा मेन सप्लाई की जगह पर, और वहां से हम सब विलेजेस में, सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे। अंडरस्टूड? Therefore, a number of windmills are erected over a large area, which is known as wind farms. तो ऑलरेडी हमने देखा कि we have to erect large number of windmills in a single area, and therefore that farm or that place is called as wind energy farm. The energy output of each windmill in a farm is coupled together to get electricity on a commercial scale.
तो यहाँ पे आप जितने भी विंड मिल्स देख रहे हो, सबका इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पर हम कलेक्ट करेंगे एंड फिर वहां से पूरे एरिया को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। सबका इलेक्ट्रिसिटी एक ही प्लेस पर, एक ही स्टेशन पर कलेक्ट किया जाएगा। ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि एक विंड मिल का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सफिशिएंट नहीं होगा। Let us see now advantages of setting up a windmill, and here are the advantages. First one, wind energy is an environment friendly and efficient source of renewable energy. So these are the most important advantages of the wind energy. It is environment friendly. It will not cause any pollution. जरा सा भी pollution प्रोड्यूस नहीं होगा विंड एनर्जी यूज करने से, एंड हमें कंटिन्यूअसली विंड एनर्जी मिलता रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी, और यू कैन से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। It requires no recurring expenses for the production of electricity. एक बार जब हमने विंड मिल्स को सेटअप कर दिया तो बार बार हमें कुछ उसके ऊपर एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बार सेटअप कर दिया तो हमें लाइफ टाइम तक उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्जेस हमें करना पड़ेगा, उसके लिए कोई आदमी रखने पड़ेंगे जिससे मेंटेनेंस रेगुलरली हो पाए। Now across all these advantages, there are many limitations in harnessing wind energy. Here are the disadvantages. First one, wind energy farms can be established only at those places where wind blows for the greater part of a year. विंड मिल्स हम हर एक जगह पे सेटअप नहीं कर पाएंगे जहाँ पे विंड एनर्जी, दैट मीन्स विंड जो है वो थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे ब्लो हो रहा है, तभी हम विंड मिल सेटअप का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, you will suffer a huge loss in the terms of money, because कुछ भी रिसर्च किए बिना कुछ भी काम हमें नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एयर होगा, प्रॉपर विंड होगा तो विंड मिल्स प्रॉपरली चलेंगे एंड तो ही हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली मिलेगा। ओके, the wind speed should also be higher than 15 km per hour to maintain the required speed of the turbine. So this is a very important point to remember. You require at least 15 km per hour speed of the wind. जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम स्पीड का विंड जो ब्लो हो रहा होगा तो टरबाइन रोटेट नहीं होगा। टरबाइन रोटेट नहीं होगा तो वी ऑलरेडी नो generator is connected to the turbine, and therefore generator will also not work, which will not give us electricity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि कम से कम स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ओके, there should be some backup facilities like storage cells to take care of the energy needs during a period when there is no wind. तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे ईयर विंड है वो कंटिन्यूअसली ब्लो करेगा। तो कोई बार क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप हमें
कोई और चीज से लेना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसी बैकअप फैसिलिटी रखनी पड़ेगी जिससे हमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। वेदर द विंड इज देयर और नॉट, वी शुड गेट कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक पावर एट अवर होम। सो फॉर दैट यू रिक्वायर बैकअप फैसिलिटी। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। हमने विंड मिल सेटअप किया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट फिर भी हमें एक और फैसिलिटी साइड में एज अ बैकअप रखना पड़ रहा है, तो दैट इज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बहुत ही ज्यादा एरिया चाहिए हमें विंड मिल्स का और विंड एनर्जी फार्म्स को सेटअप करने के लिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं कितना बड़ा एरिया हमें चाहिए। तो इफ यू वांट टू गेट 1 megawatt generator or you want to set up 1 megawatt generator, the farm needs about 2 hectares of land. तो आप देख सकते हो 1 megawatt जनरेटर बहुत ही छोटा अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ये 1 megawatt। तो उसके सेटअप के लिए आपको 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, इमेजिन कर सकते हो बहुत ही बड़ा लैंड होता है 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। बहुत ज्यादा एरिया चाहिए हमें, सिर्फ छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाएगा, छोटा सा अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज। टू गेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ और लार्ज प्लेस टू सेट अप द wind energy farm. The initial cost of establishment of the farm is quite high. तो जब हम स्टार्टिंग में उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उसका कॉस्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। नॉर्मल you can say somewhere around in crores you require to set up a very small amount of wind energy farm, small size of wind energy farm। तो बहुत ज्यादा आपको एरिया चाहिए होगा, साथ में आपको मनी भी उतना ज्यादा चाहिए। the cost of establishment will be very high। and the last one of this session, that is, moreover, since the tower and the blades are exposed to the vagaries of the nature like rain, sun, storm and cyclones, they need a high level of maintenance। तो ये सब जो नेचुरल थिंग्स है, जैसे कि रेन, सन है, हीट ऑफ द सन, स्टॉर्म, बहुत जोर से विंड आएगा विद द रेन, साइक्लोन है, तो ये सब चीजों के कारण क्या हो सकता है कि जो विंड मिल्स के टावर्स है, विंड मिल्स के जो ब्लेड्स है, वो सब मेटल से बने होते हैं। तो मेटल खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब ये मेटल खराब होता है तब डैमेज होगा उसके आसपास वाला पार्ट, या आप बहुत बार विंड मिल एक्सीडेंट्स देखे होंगे, ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है बहुत बार बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन है, ये सब चीजों के कारण बढ़ता है। जब रेन आता है तब करोजन होने लगता है मेटल्स के ऊपर, हीट के कारण भी मतलब डैमेज होगा जो ब्लेड्स का पार्ट है, टावर का पार्ट है। तो ये सब चीजों के कारण टावर एंड ब्लेड्स डैमेज होंगे, एंड डैमेज हुआ तो उसका जो मेंटेनेंस हमें करना पड़ेगा। मेंटेनेंस मतलब उसको रिपेयर करने का जो चार्जेस है, उसके रिपेयरिंग के जो भी पार्ट्स होंगे वो सब बहुत ही कॉस्टली होते हैं, एंड इट विल रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। Okay, so this was all about wind energy, harnessing wind energy. Okay, in the next lecture we'll see about other energy, that is a alternative or non conventional sources of energy. Okay.